صرف ایک حل ہے، اور وہ حل ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے اندر۔ اس طرح ہندوستان نے کیا 5 اگست کو، جو انہوں نے ظلم کیا، پہلے سے ظلم کرتے آ رہے تھے، لیکن قانونی طور پہ ان کا آرٹیکل 370 ختم کر کے ان کا سٹیٹس ختم کیا، باہر سے لوگ لا کے سیٹل کریں تاکہ کشمیری اپنے علاقے کے اندر اقلیت بن جائیں، مائنورٹی بن جائیں۔ اس سے کبھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، حل ایک ہی ہے، اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو میپ ہے یہ ایک پہلا قدم ہے، اور ہم پوری پولیٹیکل جدوجہد کریں گے۔ ہم ملٹری سلوشن پہ نہیں مانتے، ہم پولیٹیکل سلوشن پہ مانتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کو ہم بار بار یاد کروائیں گے کہ آپ کا ایک وعدہ تھا جو آپ نے پورا نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عائشہ احتشام۔ ہماری منزل سری نگر ہے، کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے۔ آج پوری دنیا نے بھی دیکھ لیا کہ باقاعدہ پاکستان نے ایک نیا نقشہ جاری کر دیا ہے، جس کے بعد اس بات میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور یہ حقیقت آج نقشے کی صورت میں بھی سب کے سامنے آ گئی ہے۔ اب مودی کی غاصب فوج کے کشمیر میں دن گنے جا چکے ہیں۔ کشمیر کی وادی میں بہت جلد انشاءاللہ آزادی کا پرچم لہرائے گا۔ آج مودی کی سفاکیت کو، بربریت کی انتہا کو 1 سال ہونے والا ہے، اور اس 1 سال میں کشمیر کے بچے نے اپنے عزم اور حوصلے سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ مودی چاہے جو بھی کر لے، کشمیری اب اپنا حق خود ارادیت حاصل کر کے ہی دم لیں گے۔ مودی نے کشمیریوں کو نسل کشی کا منصوبہ بنا کر رکھا ہے، اور وہ بے نقاب اب ہو رہا ہے۔ پوری دنیا اس کی گواہ ہے کہ کیسے کشمیریوں سے 7 دہائیوں سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کیا گیا، لیکن آج پاکستان نے اپنا سرکاری نقشہ جاری کرنے کے بعد کشمیریوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ہم سب کشمیری ہیں اور کشمیر پاکستان ہے۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ دنیا کے سامنے رکھا، جو پاکستان کی عوام کی امنگوں کا بھی ترجمان ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج سے سارے پاکستان میں پاکستان کا سرکاری نقشہ وہی ہوگا جس کو آج وفاقی کابینہ نے منظور کیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اسکولوں، کالجز اور عالمی سطح پر اب پاکستان کا یہی نقشہ ہوگا۔ مسئلہ کشمیر سے متعلق انہوں نے کہا کہ میں پھر سے واضح کر دوں کہ کشمیر کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں ہے، جو کشمیر کے لوگوں کو حق دیتا ہے کہ ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان یا بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے سب کو مبارکباد دی کہ یہ نقشہ کشمیر کی آزادی کے لیے پہلا قدم ہے، اور پاکستان فوجی نہیں سیاسی حل کے ذریعے ہی اقوام متحدہ کو بار بار یاد دلائیں گے کہ آپ کا ایک وعدہ تھا جس کو آپ نے پورا نہیں کیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے بھی نقشے کے حوالے سے کہا کہ اب جموں کشمیر کے حوالے سے کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو یہاں درج کر دیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک رائے شماری ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہونا ہے۔ جو ہندوستان کا موقف اور جو انہوں نے وہاں انلیگل آکوپیشن کی ہوئی ہے، اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں اور اپنا رائٹ جو ہے اس علاقے پر کلیم کر رہے ہیں۔ خوشائن بات یہ ہے کہ آج پوری قوم اس پاکستان کے پولیٹیکل میپ پر متفق ہے۔ وزیر اعظم نے آج کابینہ کو اعتماد میں لیا اور کابینہ نے اس نقشے کو انڈورس کیا ہے۔ کشمیر کی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا اور کشمیر کی قیادت نے کل اس نقشے کو پوری طرح انڈورس کیا۔ آج کشمیر کے حوالے سے یقیناً ایک اہم ترین دن ہے۔ آج ہی کی رات مودی نے کشمیریوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں جب دھوکہ کیا، کشمیر پر غیر قانونی فوج کشی کا جو منصوبہ بنایا، اور 5 اگست 2019 کو 1 سال پہلے کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا، ہر گلی، ہر گھر کے سامنے فوجی تعینات کر دیا گیا، تمام حریت رہنماؤں کو، سیاسی لیڈرز کو قید کر لیا گیا، کشمیریوں کا رابطہ پوری دنیا سے کاٹ دیا گیا، اور یہ سب کچھ مودی صرف کشمیریوں کی نسل کشی کے لیے، انہیں کشمیر میں اقلیت بنانے کے لیے کر رہا تھا۔ مودی کی اس چال سے اس کا شفاف چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا میں بے نقاب ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھارت خطے میں ہی نہیں پوری دنیا میں تنہائی کا شکار ہے۔ عرب دنیا نے پہلی بار بھارت میں اسلاموفوبیا پر آواز اٹھائی، ترکی سے، ملیشیا
मुसलमान मुल्क ने मोदी की शफाकियत पर इसके घिनौने खेल को बेनकाब किया। आज इस अहम तरीन मामले के ऊपर बात करेंगे और जो मोदी की शफाकाना किस्म की सोच है और जो मोदी की इंतहा पसंदी हम खत्ते में देख रहे हैं कि किस तरीके से मोदी के एक एरोगेंट बिहेवियर ने और फिर उसको भारत का रवैया ही मजमूई तौर पर समझा जाता है। इस वक्त जो सूरत हाल बना कर रखी हुई है अपने नेबर्स से या हमसाया ममालिक हैं उनके साथ भी कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ इस वक्त भारत की बन रही हो। चीन में हमने देखा है कि किस तरह गुलवान वादी में भारत को जो है वो खाक चटाई है चीन ने। अफगानिस्तान का जो अमल है उससे बिल्कुल कोसों दूर है भारत, पाकिस्तान के साथ कभी बनी नहीं भारत की। नेपाल के साथ भी जो है वो सूरत हाल खराब है। जनरल राइड अमजद शुएब साहब ने ज्वाइन किया है, मुझे दिफाई तजियाकार है। बहुत शुक्रिया जनरल राइड अमजद शुएब साहब। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आज जनरल साहब, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ा कदम पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से आज पाकिस्तान का एक ऑफिशियल नक्शा जो जारी किया गया है जिसमें मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। क्या कहेंगे आप, कितना बड़ा फैसला और क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है इस लिहाज से कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों की वजाहत कर दी गई है जो कि अमूमन जिसकी बुनियाद पे गलतफहमी होती है लोगों को। खास तौर पे ये हुआ कि जब इंडिया ने आर्टिकल 370 ख़त्म किया और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया तो उन्होंने अपना एक नक्शा जारी किया। अब वो नक्शा अगर आप अपना नक्शा आप सामने नहीं लाते या कोई आपकी तरफ से कोई दावा नहीं आता तो दुनिया ये समझ सकती है कि जनाब ये मामला सेटल्ड है, भारत ने अपना नक्शा बनाया, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया उसको। तो एक तो ये कि भारत के उस नक्शे की डिनायल, उसकी नफी है कि ये नक्शा झूठ पे मबनी है। भारत का नक्शा जो है वो कतन किसी भी सूरत में वो हकीकत नहीं बयान करता और ना काबिल कबूल है। इसने हकीकत रखी है कि आपने भारत का बताया कि कश्मीर इलीगली ऑक्युपाइड जो पोर्शन भारत के पास है उस पर लिखा हुआ है इलीगली ऑक्युपाइड बाय। इसका मतलब ये है कि उसका कब्जा तसल्लुत आपने दुनिया पूरी तक पहुंचाया कि गलत, वो बगैर कानूनी है। फिर ये है कि आपने लद्दाख भी इसमें शामिल किया, वो दिखाया जो चाइना के साथ हमारी वहां पे बाउंड्री डिमार्केट नहीं हुई, हमने छोड़ी हुई है कि जनाब जब कश्मीर का मसला हल होगा तो फिर यहाँ डिमार्केशन होगी चाइना के साथ। तो वो चीज भी वाज़ेह हो गई कि कश्मीर का मसला हल तरफ है, चाइना तस्लीम करता है इसको क्योंकि उसके साथ बाउंड्री नहीं तय हुई है हमारी। इसी तरह आप देखिए कि सरक्रीक उसमें शामिल है, सैचिन शामिल है और उनको उसी तरह आइडेंटिफाई किया गया है। फिर आपने फाटा के इलाकों का भी उसमें शामिल कर दिया क्योंकि फाटा के इलाके अब केपीके का हिस्सा है, तो केपीके के अंदर वो नजर आने चाहिए थे जो पुराने नक्शों में नहीं है, तो वो भी आपने देखा कि हमने उसमें इंक्लूड कर दिया। जूनागढ़, मनावर ये वगैरह जो है मनादर, ये सारे इलाके अपनी असल पोजीशन पे जाहिर कर दिए गए। तो एक तो ये हो गई कि आपने भारत के उस दावे की नफी कर दी और पूरी दुनिया अब देख सकती है कि पाकिस्तान का क्लेम क्या है। इसके साथ साथ जो बहुत बहुत अहम चीज है वो ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में एक ऑफिशियल नक्शा इस किस्म का ना होने की वजह से मुख्तलिफ अदारे, मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस अपनी मर्जी के नक्शे इस्तेमाल करते थे और उनमें अक्सर गलती हो जाती। किताबों में, निसाबी किताबों में नक्शा लगा हुआ और फिर तूफान उठ रहा है कि जनाब इसमें कश्मीर उसका हिस्सा दिखा दिया, इसमें ये ऐसे दिखा दिया। पिछले दिनों एक सरकारी टीवी चैनल के ऊपर भी ये मसला आया। तो अब ये नक्शा जब आपने ऑफिशियली इशू किया तो सबको ये इस्तेमाल करना होगा, हर किताब में ये लगेगा, हर निसाब में ये पढ़ाया जाएगा और इससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी लोगों में। और दूसरा ये कि आपके पूरा कौमी जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान का वो इससे जाहिर होगा और कोई इसमें आप में या कोई इसमें तब्दीली या डेविएशन नहीं कर सकेगा। तो ये बड़ा कौम के एक मौक़िफ़ के नुक्ता निगाह से, भारत के नक्शे की नफी के नुक्ता निगाह से, कश्मीर की मौजूदा हैसियत दिखाने के नुक्ता निगाह से ये एक मुतनाज़ा इलाका है, हर लिहाज से ये एक बड़ा अच्छा और बड़ा कदम है जिसके दूररस नताइज होंगे और आइंदा के लिए हमें इस नक्शे को रेफर करके मुख्तलिफ वक्तों पे आसानी रहेगी। अच्छा जनरल साहब, एक और बात, कल एक पूरा साल हो जाएगा भारत ने जिस तरीके से मिलिट्री सीज इस वक्त कश्मीर के ऊपर रखा हुआ है, पूरे एक साल से पूरा कश्मीर जो है वो जेल में तब्दील कर रखा है। और मेरे ख्याल में तारीख ने भी शायद पहली बार ही इंसानी हकूक की इस कदर बुरी तरीके से पामाली है जो पहली बार विटनेस की होगी। यौम इस्तेसाल जो है वो कल पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए मना रहा है। देखिए, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बेतहाशा हुई, जेल बना दिए कश्मीर को, और यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट वॉच जो है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है,
اس نے رپورٹ مرتب کی تھی جس میں انہوں نے سارے یہ ظلموں پر بھی ہائی لائٹ کی تھی، اور پھر انہوں نے کہا جی ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن جانا چاہیے. وہ جو فیکٹ فائنڈنگ مشن کا قصہ ہے وہ 5 لیٹر لکھے جا چکے ہیں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھارت کو، اور وہ اس نے جواب نہیں دیا. اب یہ پاکستان کو مسئلہ اٹھانا چاہیے یونائٹڈ نیشن میں کہ وہ ملک جو آپ کے خطوں تک کا جواب نہیں دیتا، جو ملک آپ کی قراردادوں کی کوئی وقت نہیں رکھتا، آپ اس کو یہاں پہ بٹھا رہے ہیں سیکورٹی کونسل میں. تو پاکستان کے پاس ایسا نسخہ ہے کہ ان کی تذلیل کی جا سکتی ہے، ان کے اوپر کنفرنٹ کیا جا سکتا ہے، اور کرنا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنرل ٹرائب امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مشال ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، کشمیری حریت رہنما ہیں، اور کشمیری حریت رہنما یاسین ملک صاحب جو بہت پرومیننٹ ہیں کشمیر موومنٹ میں، ان کی زوجہ بھی ہیں. بہت شکریہ مشال پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. مشال صاحبہ، آج کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ، اس کے اوپر سب سے پہلے ہم بات کریں گے. وزیر اعظم پاکستان نے آفیشلی پاکستان کا ایک نقشہ جاری کیا ہے جس میں مقبوضہ کشمیر کو جو ہے وہ پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ یہ پہلا قدم ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان جو ہے وہ اپنی منزل یعنی کشمیر کو پالے گا. میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت کیا جذبات ہیں کشمیریوں کے، اور پاکستان کے اس اقدام کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت تو وہاں پہ کرفیو ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، پچھلے 2 دن سے اسٹرکٹ کرفیو امپوز ہو گیا ہے، اور پورا 1 سال ہونے کو آ رہا ہے جو کالا دن جس دن انہوں نے ایبریگیشن کیا آرٹیکل 370 اور 35A کی، باقاعدہ ایک نسل کشی کا باقاعدہ ایک ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا ہندوستان کی سرکار نے، ڈسممبرمنٹ کر دی کشمیریوں کی، ان کو اپنی ہی ملک اور قوم زمین کے اوپر ریفیوجی بنا دیا گیا، اور اس کے علاوہ ڈس انفرینچائزنگ کی یہاں پہ، اور یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں انڈینز کو دن بدن تیزی سے سیٹل کیا جا رہا ہے. یہ ایک بیٹل گراؤنڈ بن گیا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس وقت، اور دن بدن اتنی تیزی کر دی ہے انہوں نے اپنی پالیسیز کے اندر کہ آپ کورونا کے دنوں میں بھی دیکھ لیں، 5 لاکھ فیملیز انڈینز کو انہوں نے ڈومسائل سرٹیفکیٹس ریزیڈنسی ایشو کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ووٹر رائٹ بھی دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 8 لاکھ ہندوستان کی فورسز ہیں ان کو ملا کے، اور جو 6 لاکھ وہاں پہ لیبررز ہیں ان کو بھی مل رہے ہیں یہ ڈومسائل سرٹیفکیٹس. تو پاکستان کی طرف سے جتنے بھی سمبولک جسچرز آ رہے ہیں یا انٹرنیشنل پالیسی بلڈنگ کے اندر کہ اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا جائے، اس میں اور بھی تیزی آنی چاہیے، اور جتنے بھی سٹیپس پاکستان کشمیریوں کے حق میں لیتا ہے، آپ نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے کشمیری ہمیشہ ان کو ویلکم کرتے ہیں، مگر اس وقت کیونکہ جیسے وہاں پہ بالکل انہوں نے بند کر دیے سارے کے سارے رابطے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، تو اس وقت اور بھی خطرناک سلسلہ ہے جو اس وقت جو پالیسیز فیسٹزم کی اور جو ہندوتوا کی اور سیفرنائزیشن کی ہندوستان کی چل رہی ہیں، یہ ڈائریکٹ بلو ہے ہماری حق خود ارادیت کے اوپر، کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سارے کشمیریوں کو یہاں سے وائپ آؤٹ کر دیا جائے اور ایک منی انڈیا میں تبدیل کر دیا جائے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے مشال صاحبہ کہ ظلم و علم کی نئی داستانیں رقم کی ہیں پچھلے پورے 1 سال میں مودی سرکار نے وہاں پر بھارت نے. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے 1 سال میں جب زیادہ سے زیادہ سپریس کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے، وہاں پر جذبہ آزادی کی جو تڑپ ہے وہ اور زیادہ بڑی ہے اس طریقے سے دبانے کی وجہ سے کشمیریوں کو؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیریوں کو جب بھی ہندوستان نے ٹیرر یوز کیا ہے، چاہے ہندوستان کی فورسز نے اپنے ویپنز کے تھرو کیا ہو، چاہے اس لا فیئر کی بات کریں جو ایک لیگل پریزیڈنشل ایکشن انہوں نے لیا ہے، یونیلیٹرلی کشمیریوں کے سارے رائٹس کو چھین لیا گیا ہے، چاہے یہ کچھ بھی کر رہے ہوں، مگر ہر دفعہ ان کو ہار ہی ملی ہے، کیونکہ سائیکولوجیکلی، مورلی، پولیٹیکلی، ڈیموکریٹکلی جو کشمیری ہیں وہ بہت منظم ہیں اور ان کو کمیٹڈ ہیں، ان کی ایک حق خود ارادیت کی سٹرگل UN کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ اس میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے. اور اگر ہندوستان کہتا ہے کہ وہاں ایک سناٹا ہے، لوگ وہاں پہ کچھ نکل نہیں رہے جو ان کا پروپیگینڈا ہے، تو پھر کیوں بھائی اپنی 8 لاکھ فوج کو وہاں سے نکالو؟ اگر سمجھتے ہو کہ اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا ہے اور تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، تو کیا کر رہی ہے تمہاری یہ دہشت گرد آرمی وہاں پہ لوگوں کے سامنے جو کھڑی ہوئی ہے؟ ٹھیک. مشال صاحبہ، یقیناً آپ بڑی باہمت خاتون ہیں اور آپ کے شوہر جس طریقے سے اس فریڈم موومنٹ کا حصہ ہیں اور ابھی بھی نظر بندی کا وہ شکار ہے، نہ صرف وہ بلکہ اور جو حریت رہنما ہیں، کشمیری رہنما ہیں، وہ بھی نظر بندی میں ہیں، کچھ گرفتار کر لیے گئے ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کا ان سے رابطہ ہوتا ہے، وہ کیا بیان کرتے ہیں، کس طریقے سے وہاں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، روز روز نئی داستانیں ظلم و ستم کی جو ہیں وہ رقم کی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ، ان کو کس طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟
देखिए मुकम्मल तौर पे राब्ता जो है ख़त्म कर दिया हिंदुस्तान ने। मुझे कुछ पता नहीं है पिछले 3 महीने से यासीन साहब की क्या हालत है। उनको पिछले साल फरवरी के महीने में अरेस्ट किया गया था और उनको फिर कोठी बाग पुलिस स्टेशन से जम्मू जेल में शिफ्ट किया था और वहाँ से उनको तिहाड़ जेल के अंदर शिफ्ट किया और उसकी भी सबसे ख़तरनाक वार्ड के अंदर जो उसका डेथ सेल है। ये वही डेथ सेल है जहाँ मकबूल भट्ट शहीद को और अफजल गुरु को फांसी लगी थी और यहीं पे यासीन साहब को रखा हुआ है और उनको 5x9 का पिंजरा 5x7 का पिंजरा है फीट का और वहाँ पे उनको फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उनका दुनिया से कोई राब्ता नहीं है, ना फैमिली के साथ कोई राब्ता। और कोरोना के दिनों में तो और भी ज्यादा उनकी लाइफ और उनकी हेल्थ को रिस्क है। अच्छा मिशाल साहिबा बिल्कुल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एएस दलित जो हैं आईएसआई के साबिक चीफ जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर ये बयान किया था जैसे ही ये हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारी अमल में आई थी तो उन्होंने कहा था कि आज़ादी का जो जज्बा है और वो जो चिंगारी है वो कश्मीरी नौजवानों में अब और भरपूर तरीके से भड़क रही है और शायद भारत के लिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। ऑब्जर्वेशन उनकी थी, मैं आपकी जानना चाहूंगी। ये बिल्कुल करेक्ट बात है क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा है कि हिंदुस्तान ने टेरर यूज़ किया, ब्राइब करने की कोशिश की, कश्मीरियों को लॉफेयर के थ्रू उनके लीगल राइट्स छीने, हर लिहाज से नस्ल कुशी की, मगर जज्बा हुर्रियत कम नहीं हुआ लोगों के अंदर। हमारी तहरीक को लीडरलेस खुदा न खास्ता ये करना चाहते हैं मगर फिर भी इनकी भूल है क्योंकि जो भी जनरेशन है कश्मीरियों की इस वक्त, बुजुर्गों से लेके दूध पीते बच्चे, सबका एक ही सेंटिमेंट है, गो इंडिया गो बैक, वी वांट फ्रीडम। बहुत शुक्रिया। मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा, और हमें कश्मीर के हालात के हवाले से आगाह कर रही थी। वो ये कह रही थी कि पिछले 3 महीने से उनका सारे राब्ते जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं उनके शौहर के साथ भी, और जुल्म सितम की जो इंतहा है वो अपने अरूज पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो है वो चल रही है। एक छोटा सा यहाँ पर हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है जी हमें बड़े इंपॉर्टेंट इशू के हवाले से। गंदम की किल्लत जो है वो पैदा हो रही है और हम देख रहे हैं कि वफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। क्या मसला है और आखिर क्यों ये किल्लत पैदा हो रही है? एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी तो हो रही है लेकिन असल मसला कहाँ पे है और ये हल कैसे होगा? एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। हमने लिखे हैं, हमारी मिनिस्ट्री ने हुकूमत सिंध को हाईएस्ट लेवल पे कहा है कि आप फौरी तौर पर गंदम जो है उसको रिलीज करें और उसकी जिम्मेदारी मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट पे आयद होती है। गंदम तो उसने देनी है जैसे पंजाब दे रहा है, इस किस्म का बहरान क्यों चाहते हैं? किसी ने बड़ा अच्छा एक जुमला मुझे कहा कि बड़ी ईद पे इन्होंने हर चीज बड़ी करने का फैसला कर लिया कि चीनी पे उन्होंने कहा सेंचुरी, पेट्रोल पे सेंचुरी, डीजल पे सेंचुरी। फैसलाबाद के मकीन कह रहे हैं कि हमें आटा मिल नहीं रहा, महंगे दामों में आटा नहीं मिल रहा, इसकी भी जिम्मेदार आप सिंध हुकूमत को ठहराते हैं। पेशावर में आटा नहीं है, जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। तो भाई थोड़ा सा अपनी नाअहली को एक्सेप्ट करो, इस बात को एक्सेप्ट करो कि आपसे हुकूमत नहीं चलती। और इस वक्त पूरे मुल्क में एक नए बहरान का पूरे मुल्क को सामना है। गंदम की किल्लत के बहरान ने इस वक्त वफाक और सूबाई हुकूमतों दोनों को मुतहरक कर दिया और हम देख रहे हैं कि दोनों हुकूमतें एक बार फिर से हमें आमने सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। गुज़श्ता रोज वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी सैयद फखर इमाम और शिबली फराज की तरफ से सिंध पर गंदम की मसनूई किल्लत के हवाले से काफी इल्जामात आयद हुए, जबकि पंजाब के वज़ीर खुराक अलीम खान की तरफ से भी सिंध को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि गंदम की किल्लत की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है जिसने अब तक गंदम रिलीज नहीं की है, जबकि सैयद फखर इमाम की तरफ से सिंध में गंदम की जखीरा अंदोजी का इल्जाम लगाया और ये भी कहा कि सिंध हुकूमत इस जखीरा अंदोजी के खिलाफ कोई इकदाम भी नहीं कर रही, जो बज़ाहिर इस बहरान की एक बड़ी वजह है। इस वक्त पूरे मुल्क में हर सूबे में गंदम का मुख्तलिफ रेट है। हुकूमत मुकम्मल तौर पर गंदम के रेट को कंट्रोल करने और गंदम माफिया पर हाथ डालने में नाकाम हो रही है। पंजाब के वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान ने सिंध पर सारी की सारी जो है वो जिम्मेदारी आयद कर दी है। सिर्फ और सिर्फ मसला सिंध से है। सिंध ने अभी तक वीट जो है वो हमारी जितनी भी फ्लावर मिल्स हैं
सिंध के अंदर उनको सब्सिडाइज जो रेट पे वीट की फराहमी शुरू नहीं की, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि पूरे मुल्क में जो प्राइसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये हमारे लिए मुश्किल पेश कर रहा है, हमारे लिए बहुत मुश्किल दरपेश है हमें कि हम अपने आटे की तरसील जो है वो पंजाब में उसी कीमत पे रख सकें। अलीम खान ने सिर्फ सिंध पर इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी ही नहीं डाली, बल्कि गंदम की मसनूई किल्लत की बड़ी वजह भी बता दी। क्या कहा उन्होंने, देखिए जरा। इस सब्सिडी में हिस्सा नहीं डालेंगे तो क्या सिर्फ पंजाब अकेला जो है वो पूरे पाकिस्तान को सब्सिडाइज आटा दे सकता है? नहीं दे सकता। हम इसकी कॉस्ट नहीं उठा सकते। कहीं भी आपको ये 1200 रुपए से कम पे नहीं मिल रहा। तो अगर 1200 वहां का रेट है और हमारा 860 है तो ये 300 जो है 40 रुपए का फर्क है। ये 340 रुपए का फर्क जो है वो सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करें तो 340 रुपए का फर्क है एक बोरी के पीछे। तो अगर आप सोचें कि यहाँ से ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं? इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं साथ ही आपका आटा जो है उसकी कीमत 860 से 1160 हो जाती है। अब ये विफाक की और पंजाब की जो इल्जामात आयद हुए हैं सिंध के ऊपर जो इन दोनों ने किए हैं, उसकी चार्जशीट को अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर जखीरा अंदोजी को ना रोकने, फ्लॉ मिल्स को आटे की फराहमी मुमकिन बनाने पर जोर ना देने, हुकूमत की जानिब से आटे पर सब्सिडी ना देने और सरकारी गंदम की फराहमी को मुकम्मल तौर पर बंद रखने के ये जो 4 इल्जामात हैं आयद किए गए हैं। जबकि आज मुर्तज़ा वहाब की तरफ से इन तमाम इल्जामात को गैर संजीदा करार दिया गया। पीटीआई के मकामी लीडरों को सीरियस लेते हैं? उनको उनके घर वाले सीरियस नहीं लेते मेरे भाई। पीटीआई के लोग बात करने में इनको मलका हासिल है, क्योंकि माशाल्लाह जिस खूबसूरती के साथ ये लोग झूठ बोलते हैं, जिस खूबसूरती के साथ ये समा बांधते हैं ना अपने लिए, वो मैं समझता हूं इनका कोई सानी नहीं है। अब मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो गंदम की मसनूई किल्लत पर जो बयानात दिए हैं और सिंध में गंदम के बहरान के हवाले से क्या इक़दामात हो रहे हैं और आखिर क्या है असल कहानी अंदर की। एक दूसरे पर इल्जामात तो हैं लेकिन असल मसला क्या है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त सिंध के सूबाई वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राहू साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले राहू साहब पहला सवाल जो आपसे बनता है मेरे ख्याल में वो यही है कि आप ये बता दें कि इस वक्त सिंध के पास कितना स्टॉक है, क्योंकि बार बार जो है वो वफाक की तरफ से भी और पंजाब की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आपके पास बहुत स्टॉक है और आप निकाल नहीं रहे वो स्टॉक। हमारे पास इस वक्त 12.5 लाख टन हमने जो प्रोक्योरमेंट किए खरीदी है वो हमारे पास स्टॉक इस वक्त मौजूद है। लेकिन हम हमेशा आप अगर पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें तो कभी भी जुलाई के अंदर रिलीज गवर्नमेंट की रिलीजेस नहीं हुई। हम सितंबर में जो हम जल्द से जल्द अगर गवर्नमेंट हम रिलीज करती है तो वो भी हम जाके सितंबर में करते हैं। पिछले साल जो बहुत ही बहरान उन्होंने पैदा किया था, मसनूई बहरान पैदा किया जाके जनवरी में, पिछले साल भी हमने सितंबर में रिलीज की थी, अक्टूबर में बल्कि उससे पहले हमने नवंबर में रिलीज की थी। तो ये तो अब देखें जहां तक अगर सिंध की वजह से बहरान पैदा हुआ तो कीमतें पहले सिंध में बढ़नी चाहिए थी, रिलीज भी हमें करनी पड़ती, इसलिए कीमतें भी पंजाब में बहरान पैदा हुआ, पंजाब में होर्डिंग कर ली गई। हमारी गंदम का, पाकिस्तान की गंदम की प्रोडक्शन का, पैदावार का 80% पंजाब में होता है। अच्छा राहुल साहब मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, वो फिर बीच में रह जाएगी। आपने कहा कि आपने सितंबर में की और उससे पहले नवंबर में की, मुझे बताइएगा क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल है इस हवाले से, अगर जरूरत है तो उसको करने में क्या हर्ज है? क्योंकि विफाक ये कह रहा है कि महंगी हो रही है उसकी वजह से। नहीं, ऐसा हमें बैलेंस रखना होता है। हमें पता है हमारा स्टॉक कितना है, हमें पता है कि हमारी मार्केट में जो प्राइवेट मार्केट है उसमें कितनी गंदम है। हमें ये स्टॉक अगली मार्च तक चलाना है ताकि जो जब तक दूसरा फसल हार्वेस्टिंग दूसरी शुरू हो जाए तब तक हमें चलाना है। अगर हम इसको इसी वक्त निकाल देंगे तो ये आगे जाके तो पता नहीं क्या रेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बिल्कुल ही मार्केट डिस्टेबलाइज हो जाएगी। अब डिस्टेबलाइजेशन हुई कहाँ, ये होल्डिंग हुई कहाँ, इशू पैदा हुआ कहाँ? जेपीके और पंजाब में। पहले शॉर्टेज वहां हुई, इन्होंने हमें खुद जो प्रेशर डाला गया कि आप जी सिंध रिलीज करें। हम क्यों रिलीज करें कि जी आप रिलीज करें? इसलिए कि हमारे यहाँ कीमतें बढ़ रही हैं
اور ہمارے پاس گندم کی جو ہے شارٹیج ہو گئی ہے. اب پھر دیکھیں گندم ہمارے پاس یہ جو بات کہہ رہے ہیں راہل صاحب, مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا, اور obviously میرے ناظرین کے لیے بھی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رحیم یار خان سے جو گندم ہے, سبسیڈائزڈ جو گندم ہے, جو پنجاب سبسڈی دیتا ہے جس کے اوپر, وہ جا رہی ہے سندھ میں. تو یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ کس حد تک درست ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سبسیڈائزڈ قسم کی جو گندم ہے پنجاب کتنا بوجھ اٹھائے گا اس کا؟ سندھ کی گندم پنجاب گئی ہے, پنجاب کی گندم سندھ نہیں گئی ہے اس وقت بھی. ہاں اگر تب آتا جب مارکیٹ ریٹ کا فرق ہوتا, اس وقت بھی آپ کراچی اور کی مارکیٹ ابھی سندھ میں کیا ریٹ ہے نکال لیں. اس وقت بھی جو ایکس مل, اب یہ کہیں گے سرکاری ریٹ کیا ہے راہل صاحب سندھ میں اس وقت؟ نہیں, سرکاری ریٹ تو ہم ابھی ریلیز ہی نہیں کر رہے ہیں نا, لیکن میں مارکیٹ کا ریٹ بتا رہا ہوں. اس وقت بھی سندھ کے اندر ایکس مل ریٹ جو ہے 56 ہے, جبکہ لاہور میں, کراچی میں 56 ہے, لاہور میں اس وقت بھی 60 روپیہ ہے پر کے جی. اور اچھا آٹے کے تھیلے کا کیا ریٹ ہے؟ کیونکہ انہوں نے میں آپ کو جو پنجاب کے وزیر خوراک صاحب ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 1200 روپیہ جو ہے وہ تھیلا مل رہا ہے سندھ میں, جبکہ 95% علاقوں میں پنجاب میں 860 روپے کا تھیلا مل رہا ہے آٹے کا. دیکھیں اس وقت اگر ہم کتنی بھی ریلیز کریں گے, یہ ساری جا رہی ہے اس لیے کہ پنجاب میں ریٹ کا فرق ہے, پنجاب میں ریٹ زیادہ ہے. زیادہ ہے یا کم ہے؟ نہیں زیادہ ہے, کم نہیں ہے. آپ کے مطابق کتنا ریٹ ہے راہل صاحب؟ میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ کے اندر گندم کا ریٹ سندھ کے اندر اس وقت ایکس مل ریٹ جو ہے وہ تقریباً 56 ہے, اور جو لاہور کا جو ریٹ ہے وہ ہے 60 روپیہ اس وقت ایکس مل ریٹ. آٹا جا کے فلور مل والے کتنے میں بیچتے ہیں, آگے آ کے کنزیومر کو 10 کلو کا تھیلا کتنے کا بنا پھر اس حساب سے؟ اس حساب سے تو دیکھیں 60 روپے سے تو زیادہ ہے. جب 60 روپے کی گندم ہو جائے گی تو آٹا تو اس سے زیادہ ہی ملے گا نا. تو جو کنزیومر کو ہوگا وہ تو 65 میں بھی ملے گا, 60 میں بھی ملے گا. تو یہ بہت ہی زیادہ ریٹ ہے. اور پھر دیکھیں گندم پیدا ہوئی ہے, مین گندم پیدا ہوتی ہے پنجاب کے اندر, اور پنجاب کے اندر گندم تقریباً جو ہے وہ 19.4 ملین یعنی 1 کروڑ 94 لاکھ میٹرک ٹن گندم پیدا ہوئی ہے. اچھا. اور وہ گندم جو اس میں فقط 40 لاکھ پنجاب گورنمنٹ نے خریدی ہے, 10 لاکھ ٹن جو ہے وہ خریدی ہے پاسکو نے, یہ 50 لاکھ. اگر پنجاب کی جو کنزمپشن ہے وہ ہے 11 لاکھ 22 ہزار ٹن ماہوار. اچھا راہل صاحب ایک آخری سوال, مجھے یہ بتائیے گا کہ الزام جو آپ کے اوپر لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی فلور ملز کو سبسڈی نہیں دے رہے ہیں. یہ کس حد تک درست بات ہے؟ اور یہ ریکویسٹ کی ہے وزیر خوراک جو ہے پنجاب کے علیم خان صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بارڈر سیل نہیں کرنا چاہتے, اسی لیے ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اپنی فلور ملز کو سبسڈی دے دیں. بالکل ہم دیں گے جب ہماری کیبنٹ فیصلہ کرے گی, اور ہم پہلے بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے سپٹمبر میں کریں گے, یا ہم پہلے بھی کر سکتے ہیں, سپٹمبر میں بھی کر سکتے ہیں. ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوگی, اسی میں یہ فیصلہ ہوگا. لیکن ہم گورنمنٹ جب ریلیز کرے گی تو اسی پہ سبسڈی دے گی نا. جو ہمارے پاس اسٹاک ہے, جو ہم نے خریدا ہوا ہے, ہم وہ جب پرووائڈ کریں گے فلور ملز والوں کو ریلیز کریں گے تو وہ سبسائڈ اس میں سبسڈی ہوگی اس کی. بہت شکریہ اسماعیل راہو صاحب, صوبائی سندھ ہیں, وزیر زراعت ہیں, بہت شکریہ آپ کا. غذائی قلت جو ہے وہ بھی پیدا ہونے لگی ہے, ایک کے بعد ایک بحران جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے, لیکن بہت ہی بیسک چیز ہے. گندم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ مہنگی ہوتی ہے یا آٹا مہنگا ہوتا ہے تو وہ بہت نچلے طبقے کو, جو جن کا صرف گزارا روٹی کھانے پر ہوتا ہے, وہ ان کو بھی افیکٹ کرتا ہے. یقیناً جو اس وقت حکومت ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا بحران ہے جو کہ سر اٹھا رہا ہے, اور اس کو ٹائم کے اندر ہی کنٹرول کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. جب سے پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے تب سے پی ٹی آئی کی حکومت کی اتحادیوں سے بالکل نہیں بنی ہے. کاف لیگ ایک بار پھر
पंजाब हुकूमत से काफी नाला हैं और आज वज़ीर आला पंजाब से अपने गिले शिकवे करने के लिए मुलाकात भी की है। आज की बैठक इसलिए भी बहुत अहम है कि उस्मान बुज़दार की तब्दीली की सूरत में परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाने की डिमांड भी की गई है। पहले तो काफ लीग नाराज है और ऊपर से मुलाकातों में उस्मान बुज़दार के मुतबादल के लिए चौधरी परवेज इलाही का नाम लिया जा रहा है। इस नई सियासी चाल के पीछे आखिर क्या वजूहात हैं, क्या मुहर्रकात हैं, इस पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जिनके मुतबादल के लिए नाम दे रहे हैं उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं, ये क्या हो क्या रहा है निज़ामी साहब? तो मेरे इल्म में नहीं कि जो मुलाकात आज होनी थी, शायद वो 4 बजे तक नहीं, बाद में शायद हो गई होगी जी। मेरे इल्म में नहीं है। तो लेकिन असल बात ये कि ये चौधरी परवेज इलाही ने तो बड़ी देर से ये वाज़ेह कर दिया हुआ है, और जो चौधरी शुजात ने भी है कि अगर वो ज़ार साहब रहते हैं तो ठीक है, लेकिन उनकी जगह कोई रिप्लेसमेंट होगी तो फिर चौधरी साहब होगा, क्योंकि वो उनका पुराना स्टैंड ये है कि पंजाब से कोई ऐसी शख्सियत नहीं होनी चाहिए जो उनका मुकाबले में खड़ी हो। और इस वक्त उन्होंने सहारा दिया हुआ है वो ज़ार साहब को भी। अच्छा। तो उन्होंने ये जाहिर है कि ये एक बात क्लियर कर दी और एक अल्टीमेटम दे दिया। अब रास्ते जो है वो ज़ार साहब का या तो ये है कि वो इतना बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए PMLN से कि उनको चौधरी की जरूरत ही ना रहे। अच्छा, या बना लें उनसे कोई ठीक है। बना लें तो पर अच्छा निज़ामी साहब, एक बड़ा गिला और शिकवा जो काफ लीग को रहता है, अपेरेंटली बड़े आम इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो ये कहते हैं कि अहम फैसला साजी में हमें साथ नहीं रखा जाता। आखिर किस किस्म की फैसला साजी में उनको दूर रखा जाता है और उसकी क्या वजूहात आपको समझ में आती? देखिए, रिटर्न अग्रीमेंट में तो जो कुछ चीजें ना वो थी कि हमारे फैसले से मुराद है कि जो उनकी और उनके हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें उनकी राय को कलीदी अहमियत हासिल होगी, पोस्टिंग ट्रांसफर वगैरह। अच्छा। फंड्स को तो वो कहते हैं, उनको गिला ये है कि ये चीजें जो है इनको वादा खिलाफी हुई है। फिर तीसरी चीज ये थी कि मोहन सलाई को वजीर बनाना था, वो बाकी वो इमरान खान ने कहा कि आप सालिक को बना लें, लेकिन इस पे चौधरी शुजात ने कहा कि मैं फैमिली का हेड हूँ और मेरा फैसला कि मोहन साहब होंगे नहीं तो कोई नहीं होगा। अच्छा। तो फिर उन्होंने कह दिया आप ना बनाए बेशक, हम आपका साथ देते रहेंगे। लेकिन ये उनके सियासी गिले हैं, कुछ जाती गिले भी है उनके कि जब चौधरी शुजात साहब बड़े सख्त क्रिटिकली थे जर्मनी में ज़ेर इलाज थे, आर्मी चीफ ने तो उनको फोन कर लिया 1 से ज़ायद मरतबा, इमरान खान साहब ने पूछा भी नहीं और बाद में कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था। तो फिर उसके बाद बावजूद वो लाहौर आए करीब उन्होंने चौधरी साहब को घर पर हाजिरी नहीं दी। तो ये चीज़ें चौधरी बरादरान के लिए जो ज़ाती तल्लुकात हैं वो बड़े अहमियत रखते हैं। इसीलिए जब शहबाज शरीफ साहब के भाई का इंतकाल हुआ तो वो अपोजिट कैंप में थे दोनों, लेकिन चौधरी शुजात खुद पहुंचे वहां जनाजे में शिरकत करने के लिए। अच्छा निज़ामी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर चौधरी परवेज इलाही को कंसिडर किया जाता है तो इस पर आपको लगता है खान साहब के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, और क्या शायद यही वजह है कि पंजाब में जो है तब्दीली के बारे में उस तरह से सोचा नहीं जाता? क्योंकि ये तो आपने भी कहा ना कि ये चीज़ तो पहले ही क्लियर कर दी गई है कि अगर बुज़दार साहब नहीं तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब ही, कोई और नहीं हो सकता। मसलन अलीम खान भी बहुत अहम कंटेंडर रहे हैं कम अज कम माजी में। कुछ और लोग भी हैं, जुल्फी बुखारी साहब के कजन अटक से, वो भी बनना चाहते हैं। तो चौधरी साहब ने वो रिएटरेट कर दिया अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम किसी और को सपोर्ट नहीं करेंगे इस मनसब के लिए। पाकिस्तान में वैसे पंजाब में इसकी मिसाल मिलती पहले कि जब नवाज शरीफ का दोबारा रेस्टोर हुए 90s में, तो पंजाब में उनकी मेजॉरिटी थी, लेकिन वाइन साहब को छुट्टी करा दी और सब लोग भट्टू साहब का मिल गए। तो ऐसी सूरत हाल खान साहब की तो नहीं है। तो यकीनन उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि PTI जो है उसको PML क्यों का अगर वज़ीर आला लेना पड़े मिल जाए।
अच्छा, क्या समझते हैं निजामी साहब, अगर मैं आपको कहूं कि आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे इस हवाले से, आपको लगता है कि पंजाब में तब्दीली या वज़ीर आला की तब्दीली पंजाब के, ये वाला जो मसला, इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये इत्तेहाद को भी ख़त्म कर सकता है या इत्तेहाद इसकी वजह से ख़तरे में आ सकता है? इतना ज़रूरी है काफ लीग के लिए ये मसला? जी काफ लीग के लिए तो ज़रूरी है ना जी, वो इक़्तिदार की जो बात है, इक़्तिदार से खुश है। और पहले भी वज़ीर आला रहे परवेज़ इलाही साहब, कुछ लोग तो कहते हैं कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा उन्होंने काम किए हैं, उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो इस लिहाज से उनकी गलती तो है, लेकिन बात यह है कि असूली तौर पे तो गलत बात है ना कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी उनकी, क्योंकि उसके अपने रेमिफिकेशंस होंगे, इसलिए खान साहब के लिए बहुत मुश्किल होगा ऐसा करना। हाँ। अच्छा, बीच में एक ये बात भी आई थी निजामी साहब, कोई मर्जर की बातें भी हुई थी कि शायद काफ लीग जो है वो जम हो जाए पीटीआई में, क्या इस ऑप्शन को बिल्कुल ही निगेट कर दिया गया है काफ लीग की तरफ से? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल कि वो अपना इस वक्त जो उनकी क्लाउड है वो उनको यानी रज़ाकाराना तौर पर ख़त्म कर दे, ये तो कुछ गैर सियासी सा अमल होगा उनके हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जी ये आरिफ निज़ामी साहब से बात करने के बाद भी और इस मुलाकात के बाद भी वो जो एक कैप्शन होता है ना कि पंजाब में तब्दीली, उसके आगे अभी भी एक बड़ा सा सवालिया निशान है कि आखिर ये जो मसला है इसमें होने क्या जा रहा है, क्या वाकई उस्मान बुज़दार जो हैं वो जा रहे हैं? एक टाइम पे हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा इस हवाले से चहमगोइयाँ होने लगी थी कि पंजाब में बस तब्दीली ये आई या अगले 24 घंटों में जो है वो तब्दीली आ सकती है। और फिर जैसा कि आरिफ निज़ामी साहब ने भी कहा कि काफ लीग तो जो है बिल्कुल साफ तौर पर बहुत क्लियरली ये बता चुकी है कि या तो उस्मान बुज़दार साहब ठीक है, जब तक वो हैं हम उनको सपोर्ट भी करते हैं, और हमने देखा कि उनकी मुलाकातें पहले भी होती रही और आज भी कहाँ मुलाकात जो है वो हुई है, या तो उस्मान बुज़दार साहब, या फिर अगर उस्मान बुज़दार साहब नहीं तो पंजाब में जो वज़ीर आला है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही होंगे। और इसके ऊपर एक अहम इत्तेहादी जो हैं वो पीटीआई से अलग हो सकते हैं। पीटीआई के इसके ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो हमें नज़र ही आ रहा है कि ये भी एक नाइंसाफ़ी की बात, जैसे कि निज़ामी साहब ने कहा कि हो जाएगी कि एक पार्टी जो मेजॉरिटी में उसको छोड़कर दूसरी पार्टी का वज़ीर आला जो है वो किस तरीके से हो सकता है और इतने अहम सूबे में कैसे हो सकता है। तो आखिर में फिर वही बात है कि पंजाब में तब्दीली वाली जो बात है उसके आगे अभी तक एक बड़ा सवालिया निशान ही है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।